initiating with the greatest name of Allah, who is the creator and master of this whole beautiful universe. My dear Baharians, Assalamu alaikum. I welcome you all. I am Umar Farooq Sumro, subject teacher of English OPE class 5. Dear students, I hope all of you are fine and are still enjoying your online lectures. Dear students, as we learned in our previous lectures more about English grammar, more about learning and speaking skills, what you have to do in this lecture, you have to listen it very carefully and you have to read the lesson. You have to watch out the lesson and then you have to read it and send it on your WhatsApp group. Your tone should be very normal or advanced. You cannot read the lesson in very old like villages styles, as I am going to learn. And today I am going to tell you more about speaking English. So dear students, as you have heard from many students, they when they read English language or when they read paragraph from the book, their tone is very old. No one likes that tone. So I have made for your easiness, or I have divided the skills into 3 sections. First one is old style, second is normal style, and third will be like advanced or US English style. So the first style that is called for me old style in English reading is, मैं आपको आज इंग्लिश पढ़ने के 3 तरीके बता रहा हूँ, जिसको मैंने आपके आसानी के लिए 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है. एक जिसे हम ओल्ड स्टाइल कहते हैं, एक जिसे हम नॉर्मल कहेंगे, और तीसरा जिसे हम बिल्कुल एडवांस्ड इंग्लिश स्पीकिंग मेथड कहेंगे. बहुत से आपने बच्चे देखे होंगे कि वो जब इंग्लिश पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो वो बिल्कुल ओल्ड टाइप बोलते हैं, यानी कोई भी उन्हें पढ़ते हुए सुनते हुए पसंद नहीं करता. बट इफ़ योर टोन इज़ सो गुड, एवरीवन will like your tone and everyone will try to listen your English speaking. So मैं आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड फैशन स्टाइल इंग्लिश पढ़ने का बताता हूँ, फिर नॉर्मल, एंड देन आई विल टेल यू द एडवांस मेथड ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग. सो जो फर्स्ट मेथड है, इट वुड बी लाइक ऐसे होगा. यूनिट 3 लेसन 1, listen and speak. Number 1, read the story and answer the question. Dear students, did you hear that? This style is called old style and no one likes this style, that read the story and answer the question. What did Imran buy and what is he going to do with it? This style is called old fashioned style and it is not very effective when speaking. ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है बोलने के वक्त, यानी जो भी आपके सुनेगा वो यानी एक कंफर्टेबल तरीके से आराम से नहीं सुन पाएगा. वो कहेगा इन्हें शायद या तो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती या तो ये पहली दफ़ा इंग्लिश को पढ़ रहे हैं. एंड द सेकेंड वन स्टाइल, इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल. सो नॉर्मल में ऐसे होगा. यूनिट 3 Lesson 1, listen and speak. Read the story and answer the question. What did Imran buy and what is he going to do with it? Did you hear? Second, normal style. It is called very normal style. Okay. बहुत बार ये होता है कि आपका ये तरीका कुछ इफ़ेक्टिव होता है और अच्छा लगता है सुनने में, जिसमें विदाउट हेजिटेशन आप ये आप न पढ़ा करें जो मेथड बिल्कुल रॉन्ग है. यू हैव to read the lesson very normally, safe and sound. बिल्कुल आराम से आपने पढ़ना है without hesitation. Second one style I told you is normal style. Okay, read the story and answer the question. What did Imran buy and what is he going to do with it? ये तरीका भी काफ़ी बार, this method is also
समटाइम्स इफ़ेक्टिव, कभी कभी ये तरीका भी बहुत अच्छा होता है, बट व्हेन यू आर इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, योर टोन मस्ट बी वेरी सोलफुल इन इंग्लिश। आपकी आवाज़ बिल्कुल अच्छी इंग्लिश वाली तरह ही होनी चाहिए। जैसे अब नंबर 3, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं आपको नंबर 3 पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। नंबर 3 which is called advanced English speaking style. Okay, as I told you, I have divided the skills into 3 sections. Now I am going to tell you about the method number 3 of English speaking or reading. So it is English US style or advanced English style. It is like Unit 3, the show. Unit 3, Lesson 1, listen and speak. Number 1, read the story and answer the question. What did Imran buy and what is he going to do with it? Mummy, what have you bought? Imran, I have just bought a new joystick for my computer. Look. Mummy, hang on a minute. Hang on a moment. The box is strong. Have you noticed? Imran, oh no, I think it is damaged. Mummy, why don't you see if it works? Imran, I can't move the joystick. Mummy, did you try it in the shop? Imran, not this one, but another like it. I can hardly move this one. Look, it is damaged and the bottom corner is bent. I have just spent the last of my birthday money and now it's all gone. Mummy, don't worry. Have you got the receipt? Imran, I think so. Mummy, it was not labeled damaged goods in the shop, was it? Imran, no, it was only labeled reduced. Mummy, I expect it was damaged in the factory and then it was packed. If I were you, I would take it back to the shop. They will exchange it or give you your money back. Imran, really? Mummy, of course they have to do that. I'll come with you if you like. Imran, will you? That would be great. So dear students, I read the complete lesson for you and I told you the third method of English speaking, that is called US style or English advanced speaking style. If you try to improve your English speaking skills, you must start your English speaking from method number 3, advanced style. Okay, it would be more effective in listening. आप अगर नंबर 3 मेथड अपनाएंगे पढ़ने में, सो ये तरीका बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। जो भी आपको इस तरीके से पढ़ते हुए सुनेंगे, दे विल बी वेरी हैप्पी when they listen your English speaking style. वो बहुत खुश होंगे जब वो आपके English speaking का style देखेंगे. So here it is time for you that I must tell you the meaning of complete lesson that I read a moment ago. Dear students, यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने के लिए दिए गए हैं और कुछ पॉइंट्स इसमें से समझने के लिए दिए गए हैं. If you want to buy something from shop, which things that डू यू कीप इन योर माइंड? आप जब भी दुकान से कोई चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं, आपके जहन में कौन सी बातें होनी चाहिए? ओके, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल एंड वॉच आउट द थिंग दैट यू आर गोइंग टू बाय फ्रॉम शॉप. आपको बहुत ही एहतियात और ख़याल रखना चाहिए उन चीज़ों के लिए जो आप दुकान से ख़रीदते हैं. हियर अ मिस्टेक इज़ मेड बाय इमरान that he did not check the joystick on shop. यहाँ इमरान ने एक गलती की, जो उसने joystick गेम प्ले करने के लिए दुकान से बाय किया. He did not check it properly. He checked another one like that. उसने जो ख़रीद किया joystick गेम खेलने के लिए, वो चेक नहीं किया, पर उसके जैसा एक और joystick दूसरा सैम्पल चेक किया. ओके, सो यहाँ पे मैं आपको मतलब बता रहा हूँ द मीनिंग ऑफ द कंप्लीट लेसन. दैट मम्मी, व्हाट हैव यू बॉट? इमरान, आई हैव जस्ट बॉट अ न्यू जॉयस्टिक फॉर माई कंप्यूटर. लुक. मम्मी इमरान से पूछती हैं कि इमरान आप क्या ख़रीद लाए हैं? इमरान ने आंसर दिया कि मैं अपने कंप्यूटर के लिए एक जॉयस्टिक
जैसे आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, जॉय स्टिक इज़ यूज टू प्ले गेम्स। ओके, सो जॉय स्टिक गेम खेलने के लिए कंप्यूटर में लाया हूँ, देखें आप। मम्मी हैंग ऑन अ मोमेंट, द बॉक्स इज़ टॉर्न, हैव यू नोटिस्ड? मम्मी ज़रा ठहरें, क्या आपने नोटिस किया है कि वो बॉक्स फटा हुआ है? इमरान ओह नो, आई थिंक इट इज़ डैमेज। इमरान अरे नहीं, मैंने नोटिस नहीं किया, लगता है कि ये डैमेज किया हुआ है, ख़राब है। मम्मी वाई डोंट यू सी इफ़ इट वर्क्स? अब इमरान की मदर उनको कहती हैं कि इमरान आप ये जॉय स्टिक चला कर देखें कि ये काम करता है। इमरान आई कैंट मूव द जॉय स्टिक। अब इमरान ने वो जॉय स्टिक कंप्यूटर में जो है ऑपरेट किया, जो बिल्कुल भी इमरान ऑपरेट मूव नहीं कर सकता था। इमरान ने कहा आई कांट मूव, मैं इसे नहीं चला सकता। ओके, देन मम्मी डिड यू ट्राई इट इन द शॉप? मम्मी पूछती हैं कि क्या आपने दुकान में जब आप ख़रीद रहे थे तो ये चीज़ चेक की? इमरान नॉट दिस वन बट एन अदर लाइक इट। अब इमरान कहते हैं कि ये चेक नहीं की थी, पर इसके जैसी ही एक और। आई कैन हार्डली मूव दिस वन, मैं ये बहुत मुश्किल से चला पा रहा हूँ। लुक इट इज़ डैमेज्ड एंड द बॉटम कॉर्नर इज़ बेंट। देखें ये बिल्कुल डैमेज्ड है और इसका नीचे का कॉर्नर बिल्कुल मुड़ा हुआ है। बेंट मीन्स मुड़ा हुआ। आई हैव जस्ट स्पेंट द लास्ट ऑफ माई बर्थडे मनी एंड नाउ इट्स ऑल गॉन। मैंने अपने, इमरान कह रहा है कि मैंने अपने बर्थडे पे जो भी मुझे पैसे मिले थे वो मैंने सब खर्च कर दिए इस पर, और सब मेरे पानी में चले गए। बिकॉज द जॉय स्टिक वॉज नॉट वर्किंग, जॉय स्टिक तो काम नहीं कर रहा था, तो ये पैसे क्या हो गए? ज़ाया हो गए। इट्स ऑल गॉन, ज़ाया हो गए। मम्मी डोंट वरी, हैव यू गॉट द रिसिप्ट? मम्मी परेशान मत हो, क्या आपने रसीद ली थी? रसीद क्या होती है कि वेन एवर वी आर गोइंग टू बाय समथिंग फ्रॉम शॉप, द शॉपकीपर गिव्स अस अ चिट like receipt in which all the price of the thing and number of things is also written, and in sometimes there is also written that there is no payback of this thing। क्या होता है कि आप जब चीज़ दुकान से ख़रीद करते हैं, बहुत बार उस रिसिप्ट में ये भी लिखा होता है कि ये वापस नहीं हो सकती, या वापस होने के बाद इसी चीज़ मिलेगी या कम रेट में मिलेगी। सो मम्मी पूछती हैं कि क्या आपने रिसिप्ट ली? इमरान आई थिंक सो। इमरान ने कहा लगता है मैंने ली है। मम्मी इट वॉज नॉट लेबल्ड डैमेज्ड गुड्स इन द शॉप वॉज इट? मम्मी इमरान को कहती हैं कि क्या दुकान पे डैमेज्ड सामान था, ऐसा लिखा था क्या? नहीं। इमरान नो इट वाज ओनली लेबल्ड रिड्यूस्ड। इमरान नहीं, उस पर सिर्फ इतना लिखा था, रिड्यूस मीन्स कम किया हुआ। मम्मी आई एक्सपेक्ट इट वाज डैमेज्ड इन द फैक्ट्री एंड देन इट वाज पैक्ड। इमरान की मदर उनको कहती हैं कि मुझे लगता है कि ये चीज़ फैक्ट्री में डैमेज हुई है और उसके बाद वहीं पैक हुई है। इफ़ आई वर यू मीन्स अगर मैं आपकी जगह होती। इमरान्स मदर इज़ सेइंग टू हर सन। इमरान की माँ उनको कहती हैं इफ़ आई वर यू मीन्स अगर मैं आपकी जगह होती, आई वुड टेक इट बैक टू द शॉप, मैं ये दुकान में वापस कराती। दे विल एक्सचेंज इट और गिव यू योर मनी बैक, वो आपको या तो इसके बदले ऐसी चीज़ और देते या आपके पैसे लौटा देते। इमरान रियली? इमरान क्या वाकई में वो पैसे वापस करते? मम्मी ऑफ कोर्स दे हैव टू डू दैट, आई विल कम विथ यू इफ़ यू लाइक। इमरान हाँ वो ऐसा ही करेंगे, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आपके साथ वापस करने चलूँ। इमरान विल यू, आप चलेंगे? दैट वुड बी ग्रेट, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेसन मैनी थिंग्स आर टू बी अंडरस्टूड, बहुत सी चीज़ें समझने की हैं। सबसे पहली बात, इफ़ यू आर बाइंग समथिंग यू मस्ट चेक दैट थिंग ऑन द शॉप। बिफोर लीविंग द शॉप यू मस्ट चेक दैट थिंग दैट यू आर गोइंग टू बाय। आप जो भी चीज़ दुकान से ख़रीद कर रहे हैं
आपको लाजमन देखना चाहिए, आपको लाजमन देखना चाहिए कि क्या वो बॉक्स टूटा हुआ है, डैमेज किया हुआ है, बेंट मुड़ा हुआ है, टॉर्न फटा हुआ है, या ब्रोकन टूटा हुआ है, या बर्न्ट जला हुआ है। ये आपको देखना है कि क्या वो डैमेज तो नहीं किया हुआ। अगर आप जो चीज़ ले रहे हैं वो डैमेज ना हो, टूटी हुई ना हो, मुड़ी हुई बेंट ना हो, देन यू विल बाय दैट थिंग, तभी आप वो चीज़ ख़रीद करेंगे। एंड यू मस्ट गेट अ रिसिप्ट फ्रॉम द शॉप, और आपको शॉप से एक रिसिप्ट भी लेनी चाहिए। दैट वुड बी द प्रूफ ऑफ द थिंग दैट यू हैव बॉट फ्रॉम शॉप, एंड इट वुड बी ईजी टू गिव इट बैक टू द शॉपकीपर इफ़ यू हैव अ रिसिप्ट। और अगर आप वो चीज़ दुकानदार को, शॉपकीपर को वापस कर रहे हैं तो रिसिप्ट होगी, सो आपको ईजीनेस होगी और दुकानदार आपको वो चीज़ वापस करके देगा या उसके बदले आपके पैसे भी वापस कर सकता है। इट मीन्स दैट यू हैव टू रिमेंबर some things. First of all, you have to remember that if you are going to buy something from shop, you must watch that thing very clearly, okay, and then try to check that the thing that you are going to buy is not torn, is not broken, is not bent, or is not burnt, ना वो जली हुई है, ना मुड़ी हुई है, ना डैमेज्ड है। Then you try to purchase or buy that thing from shop, okay dear students. Activity number 2 is listen and find the words, then listen and repeat. You have to memorize these words and also the meaning of these 6 words that are given on book page number 14, okay. Try to make 6 sentences of from this activity, okay. Make one sentence on one word, dear students. For now, this is time to end up your lecture here. Allow me to end it now. We will meet inshallah in a coming lecture. Give me permission. Allah Hafiz.